Hello student, I am the GT Lamdade and welcome all of you in the fourth lecture, which is mainly focus on the hybrid parameters of CE amplifier and its notations. इसके पहले जो 3 लेक्चर हमने डिस्कस किए थे, सबसे पहले लेक्चर में हमने सिलेबस एंड इट्स रिव्यू, सेकंड लेक्चर में एच पैरामीटर्स एंड ब्लैक बॉक्स मॉडल एंड इट्स डेरिवेशन, और थर्ड लेक्चर में हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द 2-port network. So in the three lecture, we already cover all the basics which is required for the transistor emitter amplifiers. उसके लिए जो हमें बेसिक लगने वाला था, ये सभी बेसिक्स हमने इसके पहले लेक्चर में देखे हैं. यानी पहला लेक्चर सिलेबस के ऊपर डिस्कस हुआ था, सेकंड लेक्चर में ब्लैक बॉक्स मॉडल, उसमें एच पैरामीटर की डेफिनेशंस भी हमने देखे थे, उसके डेरिवेशन भी हमने देखे हैं, और थर्ड लेक्चर में हमने डेरिवेशन के साथ में 2-port नेटवर्क का हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल देखा था. अब सेम 2-port हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल भी हम लोगों को भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांजिस्टर इज अ 2-port नेटवर्क. Whereas in the transistor we know that there are the 2 junctions, base emitter junction, base collector junction. So base emitter junction is in forward bias and base collector junction in reverse bias. When for the normal operation of transistor, we know that base emitter junction should in forward bias and the base collector junction should in reverse bias. So we will get the regular operation, normal operation of transistor. So we will get the transistor, we can use as a transistor as an amplifier. So for the simplicity, for the small signals, we are using here the H parameter so as to get the analysis of the transistor in responding to the low frequency signal. So today we are going to discuss the H parameter of the CE amplifier and various notations we are using. By using the notations, completely that notations are given by the Institute of Electrical and Electronics Engineering. That different notations are very important for us because that notations are distinguished between the AC and DC quantities, whereas the AC current is noted by DC current is noted by, DC voltage is noted by, DC current is noted by. That means there are the different notations. अलग अलग notations यूज़ किए जाते हैं. अगर सर्किट में अगर दोनों करंट होते हैं, दोनों वोल्टेज अगर आपके सर्किट में है, AC वोल्टेज भी है, DC वोल्टेज भी है, दोनों वोल्टेज अगर आपके सर्किट में है, तो हम लोग अलग अलग नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं. और उसी नोटेशंस को कैसा यूज़ करना है ये डिफाइन किया है, ये एक्सप्लेन किया है, ये गिवन दिया है, उसके स्टैंडर्ड नोटेशंस दिए हैं by the Institute of Electrical and Electronics Engineering. That notations are very important while we are noting all the currents and voltages. So today we are going to start these H parameters for the CE amplifier and the notations. So first of all, I will draw the very simple circuit diagram of the common emitter amplifier, whereas as per our syllabus there is only limitation is we have to use only common emitter configuration. Another configurations we have to omit because as per our syllabus only one type of configuration is which is given, that is common emitter amplifier, because already we know that there are the common base configuration, there are the common collector configuration. So first of all we have to use the common emitter configuration as per our study is concerned with respect to the syllabus which is given by our university. So I will draw the simple diagram of that common emitter amplifier. This is in the transistor which is having these 3 terminals, base, collector, emitter, and very simple diagram. Then we will be joined the another atoms there. So rough diagram like this. So whereas this base, this is the NPN transistor, so this is NPN is there. So this base emitter junction should in forward bias
So I have to connect the battery like that, so that will be get in forward bias. So this is positive and then negative and then positive and then negative. This battery is called as the VBB, where the first letter is capital and second another two letters also capital, that is a VBB is the battery is supplied for the base emitter junction so as get in forward bias. Then another battery which is VCC, I will connect here VCC, that is positive and then negative, positive and then negative. So this VCC battery that provides the negative, that provides this reverse biasing into the base collector junction. Base collector junction by providing this VCC. This VCC is the DC battery, this is the DC battery, this positive and then negative. Now we have to use this transistor as an amplifier. While we have to use this transistor as an amplifier, so we have to given some amplification, some input, because this is an input terminal, these are the input junction and this is the output junction. This is an input junction and this is the output junction. So for the output junction, for the input junction, we have to given the input to the input junction and taken the output across this junction. So we will be consider another some components there, because as a amplifier अगर हमें उसे amplifier करके यूज़ करना है तो input के जगह पे हमें amplifier अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ input signal हमें देना है. That means we will be give the signal and some like that signal. Vs is the source. Vs is the source is here. That is Vs is the source, and then it has some resistance, that is the source resistance Rs. एंड देन आउटपुट जब हमें लेना है तो आउटपुट के लिए भी हम लोग यहाँ पे कुछ उसके अक्रॉस में आउटपुट लेंगे, दैट इज अ लोड रेजिस्टेंस. सो आर इज लोड रेजिस्टेंस. तो इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया कि जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, और आउटपुट हम लोग कहाँ मेजर करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग मेजर करेंगे. अभी आप लोगों के नोटेशंस यहाँ पे हुए, दैट इज द सोर्स इज देयर, Vs इज द सोर्स वोल्टेज विच इज गिवन हियर, इज द यू ऑब्जर्व हियर दिस इज द सिंबल ऑफ AC voltage. This is the symbol of AC voltage. The source is the AC voltage and this is the DC voltage is there. VBB is battery is providing, so as this transistor is in forward bias, and whereas this VCC provides this supply to the collector so as it is in reverse bias. So यहाँ पे हमने सोर्स भी दे दिया जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, और इसका आउटपुट हम लोग RL के अक्रॉस में लेने वाले, दैट इज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस. यहाँ पे हम लोग आउटपुट मेजर कर सकते हैं, दैट इज VO, दैट इज आउटपुट इज देयर अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका करंट जाएगा, दिस करंट इज कॉल्ड एज IB करंट, दैट इज बेस करंट. द डायरेक्शन ऑफ बेस करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगेन दिस इमीटर करंट, दैट इज कलेक्टर करंट विल बी अगेन गोइंग टुवर्ड्स दिस कलेक्टर, so that collector current is given by IC. Whereas this first letter is small and capital letter is second letter is capital, that is IB, base current is there, and this is the collector current, that is I small and this C is capital. Again this VCC is both are capital, so first letter is capital, second capital, third capital. This is VBB is again, this is a completely DC supply, this is a completely DC supply. अब ये आपका VS है, AC है, VS is AC. So I use here IB, base current, that is this is input current, this is input current, this is output current IC, this is output current. अब इनपुट वोल्टेज आप कहाँ मेजर करेंगे, इनपुट वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज VI इज द इनपुट वोल्टेज एंड दैट इज VBE, दिस इज इनपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ मेजर कर सकते हैं, दैट इज आउटपुट वोल्टेज. VO इज इक्वल्स टू VCE इज आउटपुट वोल्टेज. ये मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे VC. अब यहाँ पे देखेंगे VBE, VB कैपिटल है, BB कैपिटल है, EB कैपिटल है. अब इसमें कन्फ्यूजन आपका हो सकता है कि भाई ये सब जगह कोई कैपिटल है, कोई स्मॉल है, कोई बीच में कैपिटल है, तो उसका नोटेशंस क्या है. तो इस नोटेशंस को हमें जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आज के जो लेक्चर था उसमें सबसे पहले टाइटल में ही डाल दिया था कि व्हाट इज द नोटेशंस, व्हाट नोटेशंस आर देयर. हम नोटेशंस कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि नोटेशंस अगर आपके एक बार ध्यान में आते हैं तो हम लोग ज़रूर वो यूज़ कर सकते हैं. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि नोटेशन जो है वो किसने दी है. नोटेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड देयर आर द सम 4 or 5 rules are there. Sir, 5 rules we have to discuss. The first rule, DC values of quantity. First rule is the DC values of quantity. DC values of quantities are represented by
capital letter with capital subscript, represented by capital letter with capital subscript, like this. Suppose I B, I C, V B E, V C E, then V B B, V C C. So what's the meaning of this? The first letter is capital IB, I is capital, B subscript is also capital. That denotes this is the base current and this is completely DC. This is completely DC base current. Then IC, I capital, C subscript also capital, that represents it is a completely DC collector current. Then VBE, V capital, subscript B and E are also capital, that denotes this is the voltage between base and emitter. It represents it is a completely DC voltage. These are the DC currents, these are the DC voltage. We see voltage between collector and emitter. This is also completely V is capital, E is capital, C is capital, subscript V C E is also capital. So it is nothing but the completely DC values. अगर आपको कई नोटेशंस ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें दोनों भी कैपिटल है तो समझ लेना कि ये DC वोल्टेज है या DC करंट है. ये पहला रूल है. दूसरा रूल है RMS वैल्यू का. सेकंड रूल ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज are represented by capital letter with lower subscript, are represented by capital letter with lower subscript, capital letter with lower subscript, this capital letter with lower subscript I B. How got the meaning? Capital letter IB, I capital, subscript small letter I capital, subscript small e. That means this is emitter current, but this is RMS value of the emitter current. RMS value, this is RMS value of the base current, that is IB. Then about voltage V, B, E, this is a capital V and then subscript is the B and E are small. So this represent the RMS value of the base emitter voltage. So what is mean by RMS value? RMS value is nothing but the 70.71% of, this is RMS value of any quantity is defined as the nothing but, it is nothing but the RMS is nothing but is equals to the 70.71% of peak value or maximum value, peak value or the maximum value of the current or voltage, of the current or voltage. So it is nothing but the 70.71% of peak value or the maximum value, that is nothing but the root mean square value of any quantity. It might be current or it might be voltage. So these are the represented by the RMS value. Then third one, AC component of the quantities. AC component of quantities are represented by AC component. अगर आपका AC करंट है, completely AC करंट है या फिर AC वोल्टेज है, so how they are represented by? They are represented by the lower letters with lower subscript, with lower subscripts. That means lower letters with lower subscript. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया आई बी स्मॉल है और सबस्क्रिप्ट जो है बी वो भी स्मॉल है, इसका मतलब क्या होगा? आई बी स्मॉल, बी बी स्मॉल, so it represents the base current but that is AC base current. आया समझ में? I small, E small, so it represents emitter current but that is AC emitter current. Then IC, it is collector current but it is AC collector current.
देन वोल्टेज देख लेते हैं, स्मॉल v, स्मॉल b, स्मॉल e। स्मॉल v सफिक्स है, b एंड e दोनों भी स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि इट इज AC वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर। देन स्मॉल v, स्मॉल c, स्मॉल e, इट इज अ वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। स्मॉल v उसको सफिक्स क्या है, स्मॉल c भी है, स्मॉल e भी है। इसका मतलब होगा है कि AC क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो दोनों भी लेटर आपके स्मॉल होंगे, दोनों भी लेटर आपके स्मॉल होंगे, तो आपका AC कंपोनेंट का गणित जमेगा। मतलब AC क्वांटिटी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ये भी जमेगा। लेकिन हमने अगर देखेंगे इसमें देखा हुआ है I भी स्मॉल है, B कैपिटल है, I भी। अब आपने जितना 3 रूल जो स्टडी किए हैं, इस 3 रूल में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 3 रूल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहला रूल था DC क्वांटिटी के लिए कि जिसके अंदर दोनों भी आपको कैपिटल यूज़ करना है। दूसरा रूल था RMS में, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड सबस्क्रिप्ट को स्मॉल लिखना है, ये भी यहाँ पे नहीं है। थर्ड में दोनों भी स्मॉल लिखना है, AC क्वांटिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो दोनों भी आपको स्मॉल लिखने पड़ते हैं। तो आपको अब 3 रूल होने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि भाई हमने जो यहाँ IB लिखा था, बेस करंट लिखा था, जो कि ऐसा लिखा है स्मॉल I और सफिक्स B, उसमें कलेक्टर करंट में स्मॉल I कैपिटल C, कलेक्टर करंट ऐसा लिखा है। ये भजन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कन्फ्यूजिंग होने का काम है। तो इसमें चौथा रूल जो आता है, जो आप लोगों को अप्लीकेबल है, जो हम लोग अभी यहाँ लिखा है, वो चौथे रूल में आता है, दैट इज द 4th रूल। एंड 4th रूल, इन द 4th रूल, दैट इज द टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी दोनों का मिक्सिंग, AC और DC। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों अगर कंसिडर करते हैं तो दोनों का जो मिक्स होने वाला है, यू विल गेट द टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर विथ सफिक्स कैपिटल लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर with capital subscript, लोअर लेटर विथ कैपिटल सबस्क्रिप्ट। भाई लोअर लेटर वाला I ले लेते हैं, कैपिटल में B ले लेते हैं। इट्स मीनिंग ऑफ स्मॉल I सफिक्स कैपिटल B, सो इट रिप्रेजेंट्स द बेस करंट, बट दैट बेस करंट इज टोटल इंस्टेंटेनियस बेस करंट। अगर हमने I स्मॉल ले लिया, C कैपिटल ले लिया, इट रिप्रेजेंट्स द total instantaneous value of collector current, whereas first letter is small and second letter is capital, so that represents the total instantaneous value of physical quantity. It might be voltage, it might be current, it might be again, अगर आप नेक्स्ट ले सकते हैं तो कैपिटल में, जैसे अभी वोल्टेज अगर है तो आपका V स्मॉल और B और E कैपिटल ले लेते हैं। V small, first letter is small, B capital suffix, E suffix. So what is denote? It is the voltage between, total instantaneous voltage between base and emitter that represents। अगर आप लोगों को यहाँ पे पता चलता होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे IE भी कर सकते हैं, स्मॉल I एंड देन कैपिटल E, स्मॉल I एंड कैपिटल E। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? स्मॉल I एंड कैपिटल E, दिट रिप्रेजेंट्स द टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इमीटर करंट। अगर आपको टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसा निकालेंगे? सम फॉर एग्जांपल इमीटर का अगर बात करते हैं तो IE इज इक्वल्स टू, हमारे पास अभी DC करंट है, DC करंट I होगा, प्लस AC करंट है, AC करंट कैसे लिखूंगा? कंप्लीट AC इज लाइक दिस। ये अगर हमने दोनों को जोड़ दिया, जैसे कैपिटल I कैपिटल E, दैट इज IE एंड दिस इज द DC, दिस इज अ कंप्लीटली DC करंट। अगर इसके बाद में फिर I स्मॉल E सफिक्स अगर कर देते हैं तो ये कंप्लीटली AC करंट बन जाता है। ये DC करंट और AC करंट दोनों को मिला लेते हैं तो हम लोगों को मिलता है टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इमीटर करंट, दैट इज स्मॉल I सफिक्स रहेगा कैपिटल E, सो दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल इंस्टेंटेनियस इमीटर करंट। टोटल इंस्टेंटेनियस इमीटर करंट इज लाइक दिस। बाकी के भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IB है, स्मॉल I
सफिक्स कैपिटल बी, दैट इज टोटल इंस्टेंटेनियस बेस करंट इज गिवन बाय, अब डीसी बेस करंट कौन सा है, डीसी बेस करंट आई, बी होगा डीसी बेस करंट, एसी बेस करंट कौन सा है, एसी बेस करंट स्मॉल आई स्मॉल बी, ये दोनों को जोड़ मिला दें तो आपको टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द बेस करंट मिल जाएगा। तो ये आपका होगा चौथा रूल। चौथे रूल में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि स्मॉल आई अगर है उसको सफिक्स और कैपिटल लेटर दे देते हैं तो दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी ऑल्सो, एसी क्वांटिटी ऑल्सो एंड डीसी क्वांटिटी ऑल्सो, और उसी के कारण हमने यहाँ पे एसी क्वांटिटी भी और डीसी क्वांटिटी को दोनों को जोड़ मिला के यहाँ पे आई बी लिखा है, दैट इज नथिंग बट इट इज द टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द बेस करंट, दिस इज द टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट। ये आपका चौथा रूल था जो इम्पोर्टेंट है, चौथा रूल जिसको हमें यूज़ करना है। अभी जितने सारे 4 रूल मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक लास्ट वाला रूल उसके अंदर पिक वाला होता है, दैट इज द पिक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड लाइक द आरएमएस वैल्यू। इसमें 5वां वाला जो रूल है दैट इज पिक वैल्यू नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें क्वांटिटी का रिप्रेजेंट अगर करना है तो जो आरएमएस के लिए हमने जो रूल यूज़ किया है सेम रूल हम लोग पिक वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आरएमएस के लिए हमने क्या रूल यूज़ किया था, आरएमएस क्वांटिटी अगर हमें लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, दिस इज फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, उसका जैसा हमने यूज़ किया था, जैसे नोटेशंस उसके अंदर यूज़ करते हैं आरएमएस वैल्यू के लिए, सेम नोटेशंस हम लोग पिक के लिए, पिक वैल्यू ऑफ क्वांटिटी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोटेशंस जो है, ये सभी नोटेशंस हम लोग, ये पहला डीसी का है, दूसरा आरएमएस का है, तीसरा एसी कंपोनेंट का है, चौथा टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू का है, और लास्ट वाला जो है पिक और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो क्वांटिटी का जो नोटेशंस है वो नोटेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी जितने सारे हमारे हाइब्रिड्स मॉडल आगे है फ्यूचर में जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का हम लोग देखने वाले, उसमें नोटेशंस हम लोग यूज़ करेंगे, और ये नोटेशन स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं वो चेंज होते नहीं है, दीज आर द यूनिवर्सल नोटेशंस, दे आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दीज आर द नोटेशंस। अब इसके बाद में हम लोग इसमें आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इसको थोड़ा सा एच पैरामीटर निकालना है। ये नोटेशन अगर आपके समझ में आए होंगे तो मैं इसको निकाल देता हूँ, मिटा देता हूँ। अभी हम लोगों को इसको एच पैरामीटर निकालना है। किसके एच पैरामीटर निकालना है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या है? इट इज द ट्रांजिस्टर इज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। तो 2 पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन हम लोगों को याद है, जैसा सिंपल वाला मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। दैट इज I1 करंट, इनपुट करंट, देन V1 इज इनपुट वोल्टेज, I2 आउटपुट करंट एंड V2 इज आउटपुट। सो इसका इक्वेशन हम लोगों को याद होगा, V1 इज इक्वल्स टू, आप लोगों को याद है, V1 इज इक्वल्स टू I1 HI प्लस V2 HR, then I2 I1 HF प्लस V2 HO। अगर हमें इसको अप्लाई करना है कॉमन एमिटर को, तो आपका ये पूरा जो हाइब्रिड पैरामीटर है यहाँ पे सफिक्स लगेगा, E लग जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से V1 जो है दैट इज इनपुट वोल्टेज, वो क्या है? दैट इज VB, वो VB ले लेते हैं। उसके बाद इनपुट करंट क्या है? I1, दैट इज IB इज इनपुट करंट, बेस करंट हमारा इनपुट करंट है यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। आउटपुट करंट क्या है? दैट इज I2, आउटपुट करंट IC, आउटपुट वोल्टेज क्या है? दिस इज VCE, दैट इज V2, इसके हिसाब से V2 में दैट इज आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VCE, आउटपुट वोल्टेज होगा। ये पैरामीटर हमारे पास है। अब इसी पैरामीटर को हम लोगों को इस इक्वेशन में डालना है, दैट इज हाइब्रिड इक्विवेलेंट। जो आपका इक्वेशन बनता है हाइब्रिड पैरामीटर का, वही इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, तो हम लोगों को नया इक्वेशन मिलेगा। V1 क्या है? VB, सो VB इज इक्वल्स टू I1 के बदले में हम लोग IB लिख देते हैं, HI प्लस V2 आउटपुट वोल्टेज,
that is VCE into HRE, उसके बाद में और बनता है V2 I2, ये इसका एक बन गया, ये दूसरा बनेगा और एक I2 आपका IC है, so this is IC is equals to IB into HFE plus VCE into HOE। अभी नए इक्वेशंस आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बने, और वही सेम एनालॉजी से हम लोग HIE निकाल सकते हैं, दैट इज HIE। तो सबसे पहला हम लोग HIE निकाल लेते हैं। फर्स्ट HIE, what is HIE? Input impedance for the common emitter amplifier, that is input impedance for common emitter amplifier, that is small change in HIE यहाँ से निकाल सकते हैं, small change in VBE to small change in IB at constant VCE, दिस इज दैट। यहाँ से हम लोगों को मिला। अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल IB यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल चेंज इन बेस करंट, DC करंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज HIE इज इक्वल्स टू, इट्स अ रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट एट ए कांस्टेंट VCE इज इक्वल्स टू 0, and it is impedance, so it has unit of ohm. This is the first parameter, that is input impedance of common emitter amplifier. It's a ratio of small change in VB to the small change in base current IB at a constant VCE. This is first hybrid parameter. Second hybrid parameter, HFE. What is mean by HFE? HFE, this is the forward current gain, or it is a forward current transfer ratio. HFE, forward current gain or forward current transfer ratio. This is a small change in IC divided by small change in base current at a constant VCE is equals to 0. So it is the ratio of same two quantity, so it has no unit. So this is the second definition of forward current transfer ratio, or it is a current gain. It is a small change in, it's a ratio of small change in collector current corresponding to the small change in base current at a constant VC is equals to 0 at a constant VCE. Then third one HFE आपका हुआ। अभी हम लोग ले लेते हैं HRE, reverse voltage gain. It's a reverse voltage gain, so it's a ratio of small change in VBE divided by small change in VBE, small change in VBE divided by small change in VCE. That means it's a reverse voltage gain. This is the input voltage divided by output voltage, so it is reverse voltage gain. So it should be forward अगर आपका होता था तो ये आपका VCE ऊपर आता था, VBE नीचे आता था, तो ये लेकिन ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, तो उसी के कारण इसको हमने नाम दिया है reverse voltage gain of common emitter amplifier, and it is the ratio of small change in VBE to the small change in VCE at a constant IB is equals to 0. At a constant IB is equals to 0. This is the third one. It has also no unit because it's a ratio of same two quantity. And then the last one is the fourth hybrid parameter of a CA amplifier. It is the HOE, that is output admittance of common emitter amplifier, and it is a ratio of corresponding change in IC divided by corresponding change in VCE at a constant IB is equals to 0. So it's a reciprocal of impedance, so it has unit of reciprocal of resistance, so its unit is mho. So these are the four parameters, HIE, HFE, HRE, HOE. ये जो चारों हम लोगों को पैरामीटर्स मिले हैं, इसकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कभी पूछ सकते हैं आपको. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ
hybrid parameter of C amplifier, that is HI, HFE, HRE, HOE। अभी हमने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे, आप उसके ऊपर से फिर उसके वर्ड स्टेटमेंट इसके ऊपर से आप बना सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर है और ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग कोई राइट डाउन नहीं करेंगे, आपको राइट डाउन करना है। तो ये आपका ये HI आपका बना है, HFE आपका बना है, HRE बना है, HOE बना है, चारों पैरामीटर्स आपके सामने हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है जो कॉमन इमिटिव एम्पलीफायर का, वो निकालेंगे बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशंस है, ये पहले इक्वेशंस को अगर हम लोग KVL लगा देते हैं, जैसे इसमें KCL लगा देते हैं, ये पहला जो इक्वेशन इसको अगर हम लोग KVL लगाएंगे और ये जो दूसरा इक्वेशन इसके अंदर KCL लगा देते हैं, तो हम लोगों को दो अलग अलग हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल मिलेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल मिलेगा। और उसी के कारण हम लोग फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारा हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल C एम्पलीफायर का जो हमें 5वें लेक्चर में निकालना है, इसका जो 5वां लेक्चर रहेगा, इसके अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप लोग ये जो जितने सारे लेक्चर्स हुए उस लेक्चर्स का पूरा अभ्यास कीजिए, पूरा पढ़ाई कीजिए। और धन्यवाद। अगर कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको आती है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में साथ में हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। सो विल बी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।